Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, that is multiplication division. Okay, so we are going to just practice it. Let's see what we are having here, and maybe we will have some new properties of division multiplication. So let's see. Okay, so here we are having previous look. So that is, we are having some terms, that is multiplication. We know the multiplication sum. The number to be multiplied is called multiplicand, and the number by which we multiply it is called multiplier, and the result of multiplication is called our product. See, so this is our multiplicand, this is our multiplier, and the answer we are having product. Same goes with division. In division, we are having terms just like dividend, that is divided. The number by which dividend is divided is called divisor, and the result is a quotient, and the remainder is the leftover part. So here, this is our dividend, this is our divisor, and this is our quotient, and this is the leftover part. We will call it remainder. Okay, so here we are having our division property, our division algorithm. So here we are in dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. तो इससे हमें पता चलता है, अगर हम इसको सही से सॉल्व कर पाते हैं, दैट आर डिवीजन इज राइट और रॉन्ग. चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं. तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट द नंबर्स वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट. So here we are having 2145 into 440. So that is 0000. ठीक है. Now we have to put a 0 for the ones place. Now we have to multiply this 4 by these digits. 5 4 are 20. This is 2. 4 5 16 17 18. Carry 1. 4 in the 4. This is 5. And 4 2 is 8. So we are having now 2 zeros for tens in ones place. तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए तो यहाँ पर आता है 5 4 20. दिस इज 2 4 2 8. 4 4 16 17 18. That is 19 come 1. And this is 4 and 4. This is 5 and 4 2 is 8. Now we have to add them all. This is 0 0 8 and 13 carry 1. 14 carry 1 9. चलिए तो ये हो गया हमारा multiplication. Now move to next part. So here we are having division. So let's pick one question from here, just like C part ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, एंड रिमाइंडर कुछ आता है तो हम उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे. ठीक है. चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 21. ठीक है. दैट इज 7324. अब 21 की ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके इक्वल आया छोटा 21 3 दैट इज 63. माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, एंड इस 2 को हम यहाँ पर नीचे कॉपी कर लेंगे. देन 5 टाइम्स करेंगे, 5 5 2 10 नहीं, 4 टाइम्स लेना पड़ेगा. 4 1 4 एंड 4 2 8. तो यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ बचेगा 1. देन हम इसको कॉपी करेंगे 4. तो 9 में से 9 9 2 से 18. 8 टाइम्स हम यहाँ पे करना पड़ेगा. दैट इज 8 1 से 8 8 2 से 16. देन 1 6 एज अ रिमाइंडर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर रिमाइंडर. क्लियर. चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. यहाँ पर so here we are having Rohan saves 2,425 every month. How much money will he save in 23 months? So देखिए एक मंथ का गिवन है, 23 का पूछा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. ओके सो here we are having savings in 1 month.
that is rupees 2525. Okay, then we have to find out the savings in 23 months. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2525 इंटू 23. चलिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर. 5 3 is 15, carry 1, 3 to the 6 plus 1 7, 3 5 is 15, carry a 1, 3 to the 6 and this is 7. Then I was 0 put 5 to the 10, carry 1 to the 4, 5, 5 to the 10, carry on to the 4, 5. With a 5, 7, 0, 8 and this is 5. तो यहाँ पर आता है हमारे पास ₹58,075 एज आंसर. ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो ये कहना चाहते हैं अगर आपके पास टू नंबर्स आप उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जस्ट लाइक 63 मल्टीप्लाई बाय 27 या 27 मल्टीप्लाई बाय 63, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल आंसर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, देन आता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जस्ट लाइक 12 मल्टीप्लाई 13 इंटू 14, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा. ठीक है, या फिर आप इन दोनों ग्रुपिंग पहले कर सकते हैं, इसके बाद में करेंगे, देन यू विल हैव द सेम आंसर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो ये होता है कि या तो आप इन दोनों को ऐड करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर 12 की मल्टीप्लाई 35 से करें, देन प्लस साइन, देन 12 की मल्टीप्लाई आप 100 से करें. ठीक है, फिर बाद में जो भी आंसर आएगा उसको आप ऐड कर ले. ठीक है, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. तो आप किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन यू विल हैव द सेम आंसर. ठीक है, देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, आप किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we will have 0 as answer. तो 742 multiply by 0 करेंगे, then we will have 0. Clear? Next is multiplication of number by 10, 100,000 and their multiples. तो देखिए यहाँ पर 275 के मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो एक 0 ऐड करना है. ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर. एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टी है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज. इसको हम पहले ले आएंगे, अब इसको बाद में लिखेंगे. ठीक है, अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम नंबर. अगर किसी मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे देन वी विल हैव आंसर 0. तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे हमने ये वाला पार्ट देखते हैं. इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग रहा है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, देन इसी की मल्टीप्लाई 27 से, और बीच में कर देंगे एडिशन साइन, जस्ट लाइक दिस. Okay, next is question number 2. Write products of the following numbers without actual multiplication. तो यहाँ पर आता है D part. This is 42 in this. तो यहाँ पर 4278500. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बस हमें क्या करना है, सिंपल 0 ऐड करनी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग वे हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं D part. So here we are in 25 into 4. तो 25 इंटू 4 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद जो आंसर बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, इसको करेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास 100, देन 289. तो इसको करेंगे तो दैट इज 289 एंड 00. दैट इज आंसर. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, हियर वी आर इन 56 एंड 103. तो हम क्या करें, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे and we will break it into 100 plus 3. तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई 3 से. So this will become just like this.
ओके, तो यहाँ पर आता है दैट इज 5600 प्लस 6 3 is 18 कैरी 1 5 3 is 15 and this is 16. तो यहाँ पे 5768 क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्जर नंबर्स। चलिए तो अब देखते हैं कितने बड़े नंबर्स हैं। ओके ओके, here we are having our exercise 3.3 यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो here we are having these numbers, तो पहले हम 3 से करेंगे, देन अगेन 3 से, देन 6 से, फिर 8 करेंगे। So here we are in 5 3 is 15 carry 1 3 is 9 10 carry 1 3 and this is 4 3 2 is 6 and 5 3 is 50. Then put a 0 for ones place. Now again same, this is 5 0 4 6 5 1. Then अब tens place और ones place के लिए 0 put करते हैं। 6 5 is 30, this is 3 6 is 18 19 20 21, this is 2 6 is 6 7 8 6 2 is 12 carry का 1 सिर्फ 31 प्लस करेंगे, this is 5 this is 5 this is 4 this is 10 11 carry का 1, this is 8 to 16 16 plus 5 21, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा 2 and this is 7 8 9 10 carry 1 1 2 3 and this is 3। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं 10 1। तो देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है आप लोगों को, जो भी ग्रुपिंग अच्छी लगे फिर आप उससे आगे उसको सॉल्व करेंगे। 10 लाइक 15 कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर है 549। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए साइड में कर देते हैं अभी। तो दिस इज 15 into 440, 15 for 60 and this is 60 6600। तो चलिए यहाँ पर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर 6600। देन अब हमें नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी जो है 549। ठीक है चलिए, दिस इज 549 मल्टीप्लाई बाय 66। 9 6 is 54 5 6 4 is 24 plus 529, this is 2 6 5 is 32, you get 3 2 9 4, 4 3, this is 2 and this is 5 6, this is 3 6 2 3 4, 3 6 2 3 4 0 0। That is our answer. Clear? चलिए अब इसी के बाद आते हैं हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। So here we are, 1,27,025 copies of the book Gita were printed last year. Each book had 29 pages. How many pages were printed? Okay. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस की बात करी गई है। चलिए तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट दैट इज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड। ठीक है, दैट इज 1,27,125। Then we are having number of pages printed in number of copies
हाँ हाँ है, आधे कल तो हुए। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड दैट इज 229 इन अ बुक एंड नंबर ऑफ कॉपीज कितनी हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ कॉपीज that is 1,27,125. Okay, now we have to find out the number of total pages. Number of all pages. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। 1,27,125 मल्टीप्लाई बाय 229। चलिए, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तो हम अच्छे से कर चुके हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो मैं आंसर निकाल रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ गया कैलकुलेटर। So our answer 1,27,125 multiplied by 229. So we are having overall 2,91,11,625. So now here we are having our next property. Next is division and properties of division. So here we are in properties of division. The first is when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. तो चलिए खुद ब खुद आ गया। When a number except 0 is divided by itself. अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग आंसर 0। अब 0 हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। एंड द लास्ट इज एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप किसी को भी किस नथिंग से डिवाइड तो नहीं करोगे, कुछ तो होना चाहिए डिवीजन के लिए। नेक्स्ट इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज dividend is equals to quotient into divisor plus remainder. Okay, here we are having our question, that is this is our dividend, this is our divisor, quotient and remainder. Okay, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, जस्ट लाइक आप 100,000 एंड 10,000 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जीरो, तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे आपके, रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, क्वोशिएंट। ठीक है, अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो से लास्ट से डिजिट्स क्या होंगे आपके, रिमाइंडर एंड बाकी बचा हुआ क्वोशिएंट। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज पर। So we are having our exercise 3.5, question number 1, fill in the blanks. तो किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो we are having 3, 5, 4, 2, 6. Okay, so here we are having E part, that is 4, 2, 3, 4 divided by 4, 2, 3, 4. सेम नंबर को डिवाइड करेंगे we are having 1. ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे we are having 0. तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज कर चुके थे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए बोला गया, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स अ क्वेश्चन दिस एंड दिस। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, डिविडेंड, जो कि इसके इक्वल होगा हमारे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर देखिए, दैट इज डिवाइडेड बाय दिस, तो होगा डिवाइजर, क्वोशिएंट आ गया 26 प्लस रिमाइंडर इज 12, तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 3 is 18, कैरी 1, 6 18 19, 0 66। Okay, here we are having 858 plus 12. So 0, 5, 6, 7 and 870 as answer. चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे बोले कंप्लीट द टेबल। तो देखिए यहाँ पे कितनी जीरोस है, 4, तो ये क्या हो गया, लास्ट 4 डिजिट्स क्या हो गए हमारे, रिमाइंडर, जस्ट लाइक 6 7 5 8 एंड यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या है, 5, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सिंपल, इसी टाइप से आप लॉजिक से बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस वन एफ पार्ट, क्वेश्चन 10 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। दिस इज 310
910050। सो here we are, हम 3 टाइम्स करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज 310, 2 टाइम्स करते हैं, 2 0 0, 2 1 2, 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 9, एंड यहाँ पर 8 में से तो 3 टाइम्स ले सकते थे क्या? 3, नो, 8 माइनस इज 2। ठीक है, यहाँ पे एक और 0 ले लेते हैं। अब 9 टाइम्स है, 9 1 9, 9 3 27। हाँ, 9 टाइम्स ले सकते हैं। 0, 9 1 9, 9 3 27, 0, this is 1, 8 minus 7 is 1, this is 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स कर सकते हैं, नहीं 3 टाइम्स करते हैं। एस 0 3 विथ 1 3, इट इज 9 5। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 10 माइनस 3 7 एंड 1। उसके बाद यहाँ पर आता है 0, तो यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे, 310 इंटू 5, 5 1 0, 5 1 5, 5 3 50। So we are having 5 times. This is 0 0 2। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर? तो आपको बस ऐसे ही डिवाइड करना है, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 पिक कर लेते हैं एज अ वर्ड प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पर आता है कंपनी कलेक्टेड दिस मच फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो देखिए, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उनके रिटायरमेंट को क्या मिलते हैं? अमाउंट, पैसे मिलता है। ठीक है, वो था ये रहा। एंड यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू 425। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ठीक है, दैट इज 7568825। ठीक है, देन हमने बताया गया द प्राइस ऑफ शेयर, और वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है हमारे पास? दैट इज ₹425। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों डिवाइड करना पड़ेगा। 7568825 डिवाइडेड बाय 425। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आता है, तो आप देखेंगे 7568825 डिवाइडेड बाय 425। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 17809। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? चल, आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।